Welcome back to Claptrap. As we all understand that we spend hours together to look out for the right kind of a tile, still we settle with wrong choices. But today's video will help you to find the right one. Let's start with the introduction part, then we'll show you lots and lots of good tiles. Hi Rhythm. Hello sir, how are you? I'm doing good. How are you doing? I'm doing good. Welcome to Claptrap. Thank you so much. And your store is very well established now. Thank you sir. In every single individual's mind, the name of the company is Versatile, right? Yes sir, Yeah, please Versatile. tell us about this. Sir, Versatile is a multi-brand showroom Okay. which we have opened around I think 2 years back, Okay. and currently we are having around 30 to 35 companies of tiles, Okay. and each and every tile in this showroom is handpicked, as I told you in the earlier video also. Right. So we are not following any particular brand, or like we only keep the tiles which we like, or which are going like In trend. in market, like in trend, right? Okay. Yes, sir. Done. तो ये प्योरली आपका सिलेक्शन होता है या एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि आपका इंटरेक्शन इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ Right. काफ़ी है. Right. इनफैक्ट जब भी हम आपके पास आए तो हमें 2-3 इंटीरियर डिजाइनर्स हमेशा यहाँ मिलते Yes, हैं. sir. तो उनका असेसमेंट और आपका असेसमेंट बिल्कुल सर, हम दोनों मिलके. बिल्कुल दोनों मिलके, और जैसे हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे भी, और फोटोज देखते हैं वॉशरूम्स की, क्या चल रहा है अभी, क्या चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, कौन सी टाइल, कौन से कलर्स, तो उसके अकॉर्डिंग सर हम फिर हमारी टाइल्स को पिक करते हैं. राइट. और ये जो चेंजेस हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं. आई थिंक सर इन एवरी मंथ, आई थिंक ऑलमोस्ट इन एवरी मंथ हम लोग You टाइल्स keep on चेंज कर changing देते it. हैं. Right. All right. So how was the response of the previous video? Then next question is, what is in these days? Previous So, video. Previous video was fabulous. We got a like great response. We got it like from London, Australia, US, Okay. and like in north side also there's Odisha, All then Bengal. So it was fabulous. Okay. Really loved it. All right. Second sir. question we'll jump to. We'll Yes. jump to the second question, Okay. but there's a small insertion coming right now. You were not there. I was talking to one of your team members, Okay. and he received a call like an hour ago, and somebody was asking for 4 tiles to be delivered in Assam. Okay, so that's the kind of people you have, right? So the people love you a lot. Okay, this is one. And what is in these days? We were talking about the trend. Sir, in these days, mainly the stone look tiles, Okay. like stone texture tiles, which I'll show you today. Okay, And then terrazzo is really in these days. my favorite terrazzo. Yes, your favorite. Yeah. So in terrazzo also now we have very different colors, not the usual white or something. We have like red, we have blue, we have green, we have black. And also, the size of the mosaic and terrazzo is a little larger than the normal. Yes. I've seen very small terrazzo tiles. I They think don't- the large ones look better. We'll talk about Yes, that sir. as well. So Yes. 3 favorite tiles of mine to highlight this space. Okay. One is the Moroccan, we have been talking about it. Terrazzo is one. Terrazzo. And the third one is one tile that is in the grey slate color. The stone Slate look color. tile. That's the yes. third tile Yes, that I liked. Of course, there are a couple of other tiles as well. We jump to the to showcase now. Before that, there's one basic question coming to my Okay. mind. I need to have it cleared. On the basis of thickness, what are the parameters to be followed to choose the right kind of a tile? So if you are using a tile for your home or in the washrooms, I think 9 mm tile is perfect for your home or Okay. washrooms. All right. In washrooms, on the wall you can use 9 mm even in the commercial washrooms, Okay. or where you have a lot of footfall. Uh-huh. But like if you have a mall, hospital, schools, hotels, in which there are a lot of Commotion? people coming, Right. and a lot of Busy area. busy area. In that, sir, we prefer giving like a slightly more thickness. Okay. So around 12 mm, 15 mm thickness we suggest. All And right. because we suggest full body tiles, which is through and through. So the whole tile is of same material. All and right. So it is better to use Okay. in like this heavy footfall areas. You mean the homogeneous tiles? Homogeneous tiles. Right? They don't have a very thin layer No, on the they top. don't have a layer. They like the whole tile is similar. The whole like it's homogeneous. So through and through it will be the same. Okay, so I'm getting to understand this. Suppose you have a tile. Suppose it is made of the white material, Okay. but there's a very thin, invisible layer on the top. Right. That's the blue color. Right. Very, very thin layer. And if you use that tile in a very busy and traffic area, slowly the upper layer of it, like an enamel layer of your tooth, it will wear off with You time. got that right. तो जो आपका बॉडी के अंदर का व्हाइट कलर है वो बाहर निकल आएगा, बाहर निकल जाएगा और वो पूरा घिस जाएगा आपका घिस ऊपर जाएगा. का. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं. Yes.
मैक्सिमम थिकनेस जो टाइल की आती है, जैसे आपके यहाँ भी बाहर ट्रक्स की हम देख रहे थे, बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा था, उस एरिया में जो आपने जो ब्लॉक्स लगाए हैं सीमेंट के, वो टाइल्स हैं, वी डोंट डील इनटू दैट ना? वी डोंट डील सर, बट फॉर माय पर्पस आई हैव आपने यूज्ड कितना देम, thickness का use दैट किया? इज 60 mm सर। 60 60 बिकॉज मेरे यहाँ पे काफ़ी ट्रक्स आते हैं, इसलिए सर हमने ओके। इसको यूज़ किया। तो जो सीमेंट के ब्लॉक्स थे वो 60 60 mm। mm। स्लिमेस्ट टाइल कौन सी आती है? Slimmest कितने mm tiles के? are around 3 mm and 5 mm, but basically they are only used for elevations. Okay. Yes, you cannot use them on the floor. Oh, definitely not. Right. All right, done. Wonderful. On the basis of texture and color, you have told us. On the Yes. basis of thickness. Now, time to check out some tiles. One more thing which you asked me in the starting, that what Yeah. is in. So I last time also I told you the endless tiles. Endless tile. Endless tiles, जिसके Okay. अंदर आपका मार्बल की तरह पूरा प्रिंट मैच हो जाता है। Okay. तो लास्ट टाइम हमने उसका 2x4 आपको दिखाया था। अभी हमारे को उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अभी हमने एक कंपनी का स्टार्ट किया है जिसमें आपको 32x64 इंचेस में भी वो सेम टाइल्स आपको 32 by 64 Yes, inches. that Larger will- size. हाँ, 5.25 बाई 2.5 हम उसको Large बोलते हैं, size लार्ज होगा। साइज। उसके अंदर भी हमारे पास एंडलेस डिजाइन आ चुके हैं। Okay. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रनिंग पैटर्न की बात कर रहे थे। endless pattern. एंडलेस। Yes. ओके, डिफाइन करते हैं क्विकली हमारे व्यूअर्स को, एंडलेस पैटर्न्स क्या होते हैं? सर एंडलेस पैटर्न होता है जिसके अंदर आपके जो वेन्स होते हैं टाइल के, वो आपके मैच कर जाते हैं दूसरी टाइल से। जी। सो बेसिकली जो नॉर्मल टाइल आएगी वो हमेशा रैंडम पीसेस आते हैं, जैसे उसमें 5 रैंडम 6 रैंडम अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। ठीक है। हमारा जो एंडलेस है उसकी खासियत है कि मार्बल की तरह आपके इसमें वेन्स मैच हो जाएंगे। अब जैसे आप देखेंगे ये टाइल यहाँ पे एंड हो रही है, इधर इसका दूसरा ये मैच करना चालू कर जाएगा। जी। सो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों आपका मैच होते हुए चलेगा। सो ये आपको पूरा फील देगा कि ये एक ही टाइल है, हाँ, थोड़ा सीमलेस रहेगा। सीमलेस देगा। आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी एक ही सिंगल टाइल है, जी। जबकि दीज आर 2 टाइल्स। Oh, okay. ब्यूटी ऑफ इट। राइट। क्विकली इसकी हम डायमेंशंस बताते हैं, फिजिकल डायमेंशंस। साइज क्या है, थिकनेस क्या है? 32x64 साइज है, 800 by 1600 mm टू बी प्रिसाइज। All right. और इसकी थिकनेस 9 mm है, Okay. परफेक्ट फॉर वॉशरूम वॉल्स। Okay. एंड आप इसको अगर कोई घर है तो आप प्राइवेट रेजिडेंसेस फ्लैट्स में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल एरियाज में, नहीं, आप इसको वॉल Floor पे भी लगा सकते हैं। हैं। ठीक है। मैं जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल होगा वहाँ इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि ये फुल बॉडी नहीं है। राइट, ठीक है, डन। और आप इसको वैसे भी फ्लोर पे रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द लाउटर टोन में, ये डार्कर थोड़ा टोन डार्क में, टोन है सर, तो मैं इसको कभी भी रिकमेंड तो इसको वॉल पे प्रेफर करेंगे, प्रेफरेबली बाथरूम है ना? बाथरूम में भी आप इसको फीचर वॉल पे जैसे ले सकते हैं, बाकी पूरा हम उसको लाइट कलर भी दे सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। किचन डैडोज पे भी देख सकते हैं, किचन के ऊपर, किचन के ऊपर बेसिकली 2 फीट की टाइल ज़्यादा चलती है। अच्छा, थिक उसकी कटिंग में की वजह से। मतलब डैडो मोस्टली 2 फीट रहती है, उसके ऊपर फिर नॉर्मली आपके कैबिनेट्स और वो आ जाते हैं। राइट। और ये कितने फीट ये है? 2.5 फीट। तो आपका हाफ फीट वेस्ट होता है उसमें। ओके, अनलेस यू आर फॉलोइंग इन लव विद दिस, हाँ, मतलब यू कैन ऑब्वियसली यूज इट, देयर इज नो इशू, यू कैन कट एंड यूज यू इट। कैन कट एंड यूज राइट, ठीक है। दैट्स प्योरली अ क्रिएटिव कॉल। Right. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं हम। ठीक है, इनका अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज भी हम बता दें। ब्लू वाला जो भी गया था, क्या रेंज? एंडलेस जो हमारी सीरीज है वो अराउंड 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट से चालू होती है। अच्छा, यस सर, ठीक है। ओह, सतवारियो जैसा है ये। यस सर, इस वाली है। हम्म। इसके अंदर सर एक्चुअली आज हमने बहुत जल्दीबाजी में सैंपल लगवाए थे, आप आ रहे थे जी। ये उल्टी लग गई है टाइल, इसलिए इसमें मैच नहीं हो रहा है, अभी मैंने देखा। अच्छा। बट ये भी आपका पूरा एंडलेस ही चलेगा। अच्छा। अब ये लग गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो नॉर्मल हमारी टाइल होती है वो एंडलेस नहीं होती, तो उसमें पैटर्न ऐसा आएगा, एक टाइल ऐसे आएगी, एक टाइल ऐसी होगी, मैच नहीं होगा। अच्छा, ये अगर आप गलत लगाएंगे तो? गलत लगाएंगे तो। ओके। और नॉर्मल टाइल्स भी ऐसी ही होती है, बट ये जो स्पेसिफिक एंडलेस टाइल है इसके अंदर हमारा पूरा मैच हो जाएगा। अगर मैं Okay. इस टाइल को भी उल्टा कर दूंगा तो ये मैच हो जाएगा। हाँ, तो एक आपका ना एक बहुत नेचुरल सा पैटर्न, सीमलेस पैटर्न क्रिएट करता है, आपको पता नहीं चलता कहाँ जॉइंट्स और हैं। इसको लगाना भी बहुत इजी है, इसके पीछे एरो आता है, तो आप वो एरो देख देख के इसको आराम से ले कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मेसन होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लगाने ओके, डन। इसमें हम देख रहे हैं सतवारियो है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लासी सा वर्जन ऑफ सतवारियो है। थ्रू आउट एक ब्लिंग है, देयर इज अ रिवर ऑफ सिल्वर कलर। इसे कार्लिंग टाइल बोलते हैं। हाँ। इसकी जो सरफेस है वो आपकी मैट रहती है, और जो लाइंस है इसके अंदर आप देख रहे हो ये अलग से शाइन करती है। और सिल्वर कलर में, Yes, sir. डन। इसको आप किस एरिया में, लार्ज साइज स्पेस में, फ्लोरिंग पे भी प्रेफर करेंगे? सब वॉशरूम्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी प्लेन सीमेंटेड टेक्सचर ग्रे कलर का फ्लोर दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एज अ हाईलाइटर वर्टिकल एरियाज में, है ना? चलिए अगला देखते हैं। और हमेशा ट्रेंड में रहता है ये कलर, सतवारियो तो ऑलवेज इन ट्रेंड। ओह, ये अरमानी बेज। अरमानी बेज। ओके। अब इसको सर हम कोई फ्लैट के फ्लोर पे या फिर कोई बंगलों के फ्लोर पे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको पूरा ये इटालियन मार्बल का फील देगा।
एग्जैक्टली मतलब अगर आप मेरे जैसे नोविस को पूछें जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में तो हमें अरमानी बेज लगता है ये, है ना? अब आपको इसमें जॉइंट नहीं दिख रहा है, राइट। बट ये इसमें जॉइंट है। अच्छा। और ये अभी टेपर उसमें है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर हम इसको फ्लोर पे लगा देंगे तो हम दोनों इसमें जॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे। अच्छा, ज़रा भी इसमें ग्राउटिंग नहीं है ना? नहीं, इसको आप जॉइंटलेस लगा सकते हैं। ये जो बड़ी टाइल्स है सब फ्लेक्सिबल टाइल्स हैं, सो इसके अंदर कोई भी बेंड नहीं आता है। अच्छा। यू डोंट हैव टू यूज एनी स्पेसर। ऑलराइट, ठीक है। जॉइंटलेस, जैसे मेरे फ्लोर पे भी अगर आपको मैं देखा हो, ये जॉइंटलेस टाइल लगी हुई है जी। तो इसके अंदर कोई स्पेसर नहीं है। ऑलराइट, डन। वील गो, अगला देखते हैं अभी हम। और अरमानी बेज के बाद में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये भी सफारियों में आ गया सर। अब जैसे आप देखेंगे तो ये सही लगा हुआ है, इसके अंदर आपके पूरा पैटर्न भी मैच हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा मैच हो गया है इसमें। डन। ये मैट फिनिश है ग्लॉस में? सर वो वाला मैट में था और अच्छा। ये ग्लॉस में, इसमें हमने दो सफारियों रखा है। ओके। एक मैट और ग्लॉस, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे चलते हैं हमारे यहाँ। और किस बेसिस पे इनको डिसाइड करना है, मैट या ग्लॉस? क्योंकि वर्टिकल एरिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ग्लॉस सर, की? ये एक्चुअली आपका मतलब मुझसे भी लोग पूछते हैं, बट ये पर्सनल डिसीजन है, आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपको क्लीनिंग के लिए कंपेयर करोगे तो ग्लॉस हमेशा ज़्यादा इजी टू क्लीन रहेगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू मैट। ऑलराइट। मुझे एक चीज़ और दिख रही है इसमें, लाइट बाउंस भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें कंपेयर टू दैट हाँ, वन, है ना? right. इसका जो लाइट बाउंस है रिटर्न वो वो ज़्यादा totally अच्छा gloss है ना? right. ओके, तो ये अगर आप हाई ग्लॉस बना रहे हैं बाथरूम को तो देन दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। साइज़ और थिकनेस वही सेम चल रही है अभी। साइज थिकनेस सबका 9 mm और 800 by 1600 mm। चलिए अगला देखते हैं अभी। यस ठीक है, ये सब नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। सर, ये पैटर्न्स भी आप देखेंगे सफारियों को छोड़ के सब थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। और दिस सब- इज़ नॉट हैंडमेड, मतलब ब्रश फिनिश नहीं है? नहीं सर, ये आपको ऐसा फील दे रहा है। हाँ हाँ। ओह लवली। दिस इज अगेन इंस्पायर्ड बाय नेचर। इसमें अनइवननेस है क्या ये? नहीं, 3D में आपको देता है। दिखने में ऐसा लगेगा बट वो पूरा प्लेन टाइल है। So आप Very इसको nice. कहीं पे भी यूज करो, बहुत अच्छा ओके, लगेगा आपको। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। इसका कोई नाम है? इसका नाम तो मतलब टाइल का जो भी नाम है वो अलग रहता है, मार्बल, सो आई डोंट थिंक। अच्छा, आप लोग इसको generally, हाँ? आर्ट मार्बल। आर्ट मार्बल है, Yes. ऐसा कुछ आपको, आई मीन इफ यू लाइक इट यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू यू, राइट? दैट्स व्हाट द पीपल कैन डू। दिस हैज गॉट लिटिल बिट ऑफ द टच ऑफ नेचर। ये इट्स लाइक नॉट जैसे ट्विग्स होती है, ट्विग्स होती हैं, Right. ट्विग्स हैं एंड देयर आर सम ड्राई लीव्स आल्सो, राइट? दिस इज आल्सो कार्विंग, सो द लाइंस इन दीस टाइल्स विल शाइन। ओके, अच्छा, देयर आर सम रिवर्स आल्सो, मतलब यू कॉल देम एज कार्विंग लाइंस एंड स्ट्रार। ओके, ठीक है। अगेन अ फीचर वॉल, राइट, ये भी मैट फिनिश में है। मैट फिनिश। चलिए अगला देखते हैं अभी हम। लेकिन जो ब्राउन इससे पहले आप देख रहे थे, इसके साथ आप आराम से अपनी ब्राउन एक्सेसरीज को मैच कर ले सकते हैं ना? दिस इज इटालियन मार्बल फिनिश। दिस इज इटालियन मार्बल। इसके अंदर भी जैसे हम इसको वॉशरूम के अंदर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इवन किसी को अगर थोड़ा हैवी फ्लोर पसंद है जी। तो वो फ्लोर के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 mm है, साइज भी सेम है इसका, सबका प्राइस भी size and, ठीक है। ये इसका ही ग्रे वर्जन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं अभी हम। उसमें जो पीछे बेज ब्राउनिश था, Brown था, ये ये ग्रे है। अच्छा, ये भी हमारी एंडलेस स्टाइल है, इसमें भी आपका पूरा पैटर्न हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैच करेगा। राइट, ठीक है। इसमें कुछ एक मिस्टेक होती हैं, आप अगला दिखा दीजिए, तब तक हम बताते हैं कि रिदम कुछ लोग जो मैं देख रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर्स इसमें मिस्टेक कर रहे हैं इनको लेके, वो ये है कि पूरे वॉल्स पे, ऑल 4 वॉल्स पे दे समटाइम्स यूज दीज काइंड ऑफ टाइल्स विदाउट रियलाइजिंग कि इनको हाइलाइटर्स हैं, इनको एक पर्टिकुलर स्पेस पे लगाते हैं। हाइलाइटर वॉल कैसे चूज़ करते हैं? आप इतने साल से टाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर जैसे हम मतलब बाथरूम की कौन सी वॉल को हमें हाइलाइटर लेना चाहिए? सर हम लोग जो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो एक तो जो आपकी शावर वॉल होती है, जो शावर पैनल जिस वॉल पे आपका लगता है वो लेना चाहिए। वो लेना चाहिए। एक आपके WC के पीछे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको और हाईलाइट करना है, जनाब वॉश बेसिन के पीछे जो आपकी मिरर वॉल होती है उसके ऊपर भी आप इसको हाईलाइट कर सकते ठीक है। हैं। हमने जो स्टडी किया है इसका, आपने तो एडवांस वर्जन स्टडी किया है, हमने जूनियर वर्जन स्टडी किया है। जैसे आप एंट्री करते हैं वॉशरूम में, जो सामने फ्रंट वॉल पड़ती है ओके, उसको थोड़ा अवॉइड करें, लेफ्ट या राइट की जो है उसको हाईलाइट बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। हाँ मतलब है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर अंदर घुसते ही वो हाईलाइटेड दिखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो आपको इन द फेस दिखेगा और आपका बाथरूम थोड़ा छोटा दिख सकता है ना? ठीक है, डन। हम नॉर्मली वॉशरूम्स भी ज़्यादा डार्क कभी भी प्रेफर नहीं करते। अगर किसी को डार्क भी करना है तो हम बोलते हैं कि आप इसको कोई स्पेसिफिक वॉल पे ले लो, अच्छा, क्योंकि जितना आप लाइट कलर यूज़ करेंगे वॉशरूम में, जितने एक्सेसरीज टाइल्स लाइट करेंगे, उतना आपका वॉशरूम हमेशा बड़ा लग के आएगा।
ओके शायद इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो शार्प पैनल के अंदर जो प्लमिंग की अगर इशू सबसे ज़्यादा प्लमिंग वही होती है, अगर इन केस कभी प्रॉब्लम हुआ तो आपको हाइलाइटर निकाल के दूसरा हाइलाइटर लगा सकते हैं। टेक्निकल है, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये, है ना? दैट कैन बी अनदर बेनिफिट। ओके, गोइंग बैक टू दिस अगेन इज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न, है ना? इनमें आप अगला दिखा दीजिए, फिर देखते हैं। और साथ में हम सिलेक्शन ऑफ एक्सेसरीज भी बताएंगे, रिदम से पूछेंगे हमको। वी विल ट्राई टू गेट एज मच नॉलेज एज पॉसिबल कि क्या टाइल कलर डिसाइड करते हैं कि आपके बाथरूम की एक्सेसरीज कैसी होंगी। क्रोम फिनिश लेंगे आप, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, इसके बारे में बात कर लें फिर बात करेंगे हम वो। ठीक है, ये क्या नाम है इसको आप क्या कहते हैं? अच्छा, वर्साचे। वेरी नाइस, वेरी सटल डिज़ाइन, है ना? ओके सर, इसका मैंने एक कोई बहुत बड़ा बैंक्वेट था, हमने पूरे बैंक्वेट का फ्लोर इसका बनाया। अच्छा, पहले हमें लग रहा था कि आर्किटेक्ट और हमें लग रहा था कि बहुत बिजी हो जाएगा जी, बट जब वो बन के आया मतलब इट वाज अमेजिंग। ऑल राइट, ओके। फॉर अ बैंक्वेट इज अ बिजी एरिया ना, तो वो उतना वहाँ तो बहुत ज़्यादा फुटफॉल ज़्यादा होता नहीं है। मतलब वो एक मतलब छोटा हॉल था, ओके, उसके अंदर हमने use किया। ठीक है। यहाँ अच्छा, पे इनको 50 लोग ही आ सकते हैं। ऑल राइट, कभी इनको आप पार्शली भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं कि यू नो हाईलाइटेड एरिया में ये और छोटे एरिया में दूसरा। स्पेसिफिक टाइल्स में मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा ओके, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि इसमें आपकी वेन्स मैच हो रही है। अच्छा। तो अगर आप कुछ और यूज करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, So, चलिए ठीक है। इसमें इन पर्टिकुलर टाइल्स में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा इसको ही लगाएं। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में जब तक नया निकलता है स्लाइडर। इनके टाइल्स के बेसिस पे ही आप अपने एक्सेसरीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उनके कलर डिसाइड करते हैं कि आप क्रोम में जाएंगे, रोज़ गोल्ड जाएंगे, गोल्ड जाएंगे, वाइट जाएंगे, तो उनमें से कोई एक कलर चूज़ करना होता है। उसका क्या कुछ है, कोई प्रिंसिपल? सर बेसिकली हमारे यहाँ पे सब आर्किटेक्ट्स भी आते हैं, वो भी इसके ऊपर ही, आप बिल्कुल सही बोलो, टाइल के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। बेसिकली वो ये कोशिश करते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट उसका बनाए अच्छा। टाइल का, या फिर जैसे जो इसके अंदर कोई कलर आ रहा है टाइल का, जैसे इसके वो- अंदर जो वो ब्राउन कलर है, जैसे ब्राउन, देख रहे हैं। हाँ, तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनके जो एक्सेसरीज है वो सारी ब्राउन कलर में हो या फिर मतलब कॉपर फिनिश में हो, है ना? copper finish, right. ठीक है। ग्रे के साथ में आप सिल्वर क्रोम चले जा सकते हैं, White आप जा ब्राउन के सकते हैं। साथ, हाँ, वाइट जा सकते हैं, और ब्राउन के बेजेस के साथ आप रोज़ गोल्ड या फिर ब्राउन जा सकते हैं। कॉपर मेटल। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो अभी रिसेंटली हमसे इंटीरियर डिज़ाइनर ने शेयर की थी, वो भी बताएंगे टाइल्स के बारे में। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट दिखाइए, ये क्या नाम है इसका? वाह, इसका नाम सर सुमन गाशी है। सुमन गाशी, गाशी, ओके, ये भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अभी इसका डिमांड चल रहा है। अच्छा, बहुत ही अच्छी टाइल है और आप देखो बिल्कुल सेटल है। और सतवारियों का थोड़ा सतवारियों से थोड़ी नई चीज़ है ये। अच्छा। और ये ना तो हाई ग्लॉस है ना ये क्रोम, मतलब ये मैट फिनिश है सर ये बीच कार्विंग में। ही बोलते हैं इसको भी। अच्छा, हाँ, ये भी कार्विंग फिनिश है, जी, बट इसकी जो सरफेस आप सही बोल रहे हो थोड़ी स्मूथ है। हाँ, थोड़ी स्मूथ है, ना तो बहुत हाई ग्लॉस है ना बहुत ज़्यादा रफ है ना? मैट भी नहीं है, ठीक है। इसको आप कहाँ प्रेफर करते हैं? इसको आप सर वही फ्लोर फीचर पे भी लगा सकते हैं और पूरा वॉशरूम भी हमने इसका बनाया था, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आपको कोई वॉल हाईलाइट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इवन हम इसको फ्लोर पे भी देते हैं, तो आप इसको फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब एक इंटरेस्टिंग टिप जो हम बात कर रहे थे वो हम आपसे बात करते हैं। अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे थे इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ, उसमें इकोनॉमी सेक्शन का एक इंटीरियर डिज़ाइन किया था उन्होंने, और मैं बहुत प्रिसाइज वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँगा। इटालियन मार्बल उन्होंने यूज़ किया था मैक्सिमम, और उन्होंने उसकी कॉम्बिनेशन में इस तरह के टाइल्स यूज़ किए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा बताया कि जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, जो रिवील्ड एरिया है, जैसे कि जो लॉबीज़ हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, वहाँ पे इटालियन मार्बल, और जहाँ पे फर्नीचर यूनिट की प्लेसमेंट ज़्यादा है, क्योंकि फर्नीचर प्लेसमेंट विल डेफिनेटली कवर हाफ ऑफ द सर्फेस, वहाँ पे दे सेड वी यूज टाइल्स। दैट्स हाउ यू इकोनोमाइज, राइट? हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया, हम लोग भी यही क्लाइंट्स को बोलते हैं और काफ़ी आर्किटेक्ट्स हमें भी बताते हैं। हाँ। क्योंकि नॉर्मली आपके जो रूम्स होते हैं उसके अंदर आपका फर्नीचर, बेड, ये सब कुछ काफ़ी कवर कर लेते हैं जी। तो उसमें हमारे क्लाइंट्स भी काफ़ी ये करते हैं कि अगर उनको थोड़ा बजट Friendly करना है। बजट फ्रेंडली करना है तो वो टाइल्स अपने नॉर्मल रूम्स में कर लेते हैं, और जो उनके लॉबी हो गया, हॉल्स हो गए, जहाँ पे काफ़ी उनके गेस्ट भी आएंगे और सब लोग देखेंगे, वो वहाँ पे उसको प्रॉपर इटालियन मार्बल लगाएंगे। ठीक है, एक सजेशन है बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये कॉम्बिनेशन अगर आप खुद से कर रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर और एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सीलेंस और एक्सपर्ट्स असिस्टेंस, देन प्लीज़ बी केयरफुल एंड टॉक टू रिदम, ही विल गाइड यू, है ना? प्लीज़ इनको गाइड करिएगा, बिकॉज दिस मिसमैच कैन एक्चुअली फॉल फ्लैट ऑन द फेस, यस, मतलब इसमें आपको काफ़ी सोच समझ के बहुत यूज़ करना है इनको।
चलिए विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये हमारा एंडलेस का 5.5 का जो 32x64 था वो ये है। इसके बाद मैं आपको हमारी जो नॉर्मल 32x64 की टाइल्स है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है। हमने काफ़ी कॉम्बिनेशन भी बनाए हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इससे। इसका साइज सेम है? इसका साइज सेम है, बट ये जो टाइल है सर ये रैंडम आएगी। अच्छा। इसलिए आप देखेंगे इसमें काफ़ी उसमें हमने कॉम्बिनेशन भी लगा रखा है कि अगर वॉशरूम में आपको देखना है कि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन लगाना है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को ऑलरेडी मतलब फील करा सकें कि आप ऑलरेडी हम इसमें कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। अच्छा, अगर डुअल एक्सेंट किया है तो कैसे दिखेगा, है ना? क्लाइंट के लिए इजी हो जाए कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, एक डार्क और एक लाइट ऐसा है। डार्क एक लाइट, मोस्टली यही कॉम्बिनेशन। लो पार्ट में डार्क, अपर पार्ट में लाइट। नहीं, जैसे आप डार्क को कोई भी वॉल को हाईलाइट करने के लिए आप उसको डार्क कर सकते हैं हाँ। और बाकी उनको लाइट कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर नीचे डार्क एंड लाइट वाला आई थिंक अभी कंसेप्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि हम पहले लोग होता तो था वही वैसा, लगाते हैं, है ना? हम लोग एक वॉल पे एक टाइल ही लगाते हैं। Alright. ऑलरेडी बहुत बड़ी टाइल। तो ये हमने मतलब हमको एक वॉल, दो वॉल ऐसे, वॉल 1 वॉल 2 ऐसे चूज करना है, Right, है ना? ठीक है, मतलब 3 वॉल पे लाइटर शेड, 1 वॉल पे डार्कर मैं शेड। ये रिकमेंड करता हूँ। हाँ, दैट्स हाउ इट शुड बी। आइडियली इट शुड बी। मैं सोच रहा था आधे में ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं। लगेगा। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसका साइज फिक्स कर दिया, इसकी थिकनेस बता दें और प्राइस बता दें। इसकी भी हमारी जो है ये 32x64 है। हाँ। 800x1600 mm जो मैंने आपको बताया था, 9 mm इसकी थिकनेस है। ठीक है, अराउंड 80 रुपीज से ये चालू हो जाती है पर स्क्वायर per फीट। square feet। ओके, क्योंकि ये रैंडम पैटर्न है तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं अभी हम। ओके, ये ये- एशिया का बुक मैच है। दिस इज नॉट एंडलेस, हाँ। ये बुक मैच पैटर्न बोलते हैं। इसके अंदर आपका जो ये है ये ऐसा ही 2 टाइल और लगेगी तो पूरा डायमंड बन जाएगा। ओके, सो ये पूरा वो मार्बल का जो जैसे मार्बल में वो डायमंड बनता है, Right. ये बिल्कुल आपको वैसे ही फील देगा। वेरी नाइस। ये भी अच्छा है। आप चाहें तो चारकोल बना के भी कोई सर्फेस एरिया वो कर मेरे सकते पास हैं। थोड़ा हाइट का यहाँ पे नहीं था, Issue है। नहीं लगाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अभी हम। सेम वर्जन है यहाँ पे भी, फ्लोर, वर्टिकल एरिया, ग्राउंड फ्लोर, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ यू सजेस्ट, मतलब एक बेज बनाया है, एक आपने डार्क आर्मानी बेज है। कंट्रास्ट इज ऑलवेज गुड, इट ऑलवेज लुक्स गुड। ओके, तो आप देख रहे हैं ऐसे ये वॉल और ये वॉल को आपको, ये वॉल्स हैं ऊपर, ऐसे नहीं लगाना है, इनको वर्टिकल करना है ना? क्योंकि एक वॉल पे डार्क, 3 वॉल पे लाइट। चलिए अगला देखते हैं अभी हम। या फिर इसके अलावा नेक्स्ट दिखाते हैं। देखिए, चलाइए नेक्स्ट दिखाइए मीना जी, दिखाइए। रिदम, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को एब्सोल्यूट प्लेन में ही जाना है, अगर मान लीजिए एक इसका हाईलाइट बना है और एक एब्सोल्यूट प्लेन जाना है, वो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, है ना? ठीक है, दिस इज़ वेरी नाइस, हाँ? है ना? ब्लू ऑनेक्स है ऑनेक्स काफी है, ऑनेक्स में भी हमारे पास काफी अच्छे कलर्स हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। जी। ठीक है, डन। चलिए अगला दिखाते हैं। और ओके, ये हमारा बोटिचिनो पैटर्न, जो बोटिचिनो एक इटालियन मार्बल आता है, जी वो प्रिंट है। ये काफी अच्छा फ्लोर्स के लिए, जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है फ्लोर्स पे। जी। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। अगला चलाएं। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ, दिस पैटर्न इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। व्हाट डू यू कॉल दिस? दिस इज स्पाइडर ऑनेक्स। स्पाइडर ऑनेक्स। इसको मेरे ख्याल से हम एक बार दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। दिस इज वेरी नाइस। दिस लाइक फॉसिल वर्क जैसा होता है ना, वैसा है ये ऑनेक्स के ऊपर, है ना? जैसे इट्स लाइक वेरी, इट्स ए स्ट्रॉन्ग पैटर्न। इसमें हाइलाइटर कौन सा है? बिकॉज दोनों ही मुझे लगता है हाईलाइट जैसे काम करेंगे। इसमें इसका ये जो ब्राउन पैटर्न चल रहा है काफी कम है, इसलिए हम हाईलाइट है इसके साथ ये अरमानी ब्राउन देते हैं। अच्छा, बट इवन इफ यू वांट टू गो इन द सिंगल टाइल, देन आप सिंगल टाइल भी पूरे वॉशरूम में यूज कर सकते हैं। वो वाला जो है, Right, है ना? right. ठीक है, डन। अगला देखते हैं अभी हम। दोनों सेम है ये सेम है, बट जैसे मैंने बताया इसमें आपके पैटर्न मैच नहीं होगा। ये हाँ। आपको एक मतलब रैंडम पैटर्न एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिखाइए। इसका क्या नाम है? ये वाइट ऑनिक्स में है। अच्छा, इसमें बहुत लाइट पैटर्न के डिज़ाइंस क्रिएट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं अभी। इसका प्राइस रेंज आपने हमको बता दिया ऑलरेडी, 80 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, इसमें जो जॉइंट दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा टेपर की वजह से दिख रहा है ना? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ ये नहीं है। ये हाई ग्लॉस में है? ये सब हाई ग्लॉस है। ओके, ये सब बड़े साइज में सब हाई ग्लॉस है और सब फ्लेक्सिबल है। अच्छा। इसमें आपको कोई भी बेंड का इशू नहीं आएगा, आप इसको जॉइंटलेस लगा सकते हैं विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, ठीक है। विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये ब्राउन एंड बेज। ओके, डन। विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। और कुछ क्रिएटिव इनपुट आएगा तो वो भी हम सोचते रहेंगे कि आपने देखा है लोगों को डाइनिंग पे इनको यूज़ करते हुए। चलिए अगला देखते हैं।
आजकल सर काफ़ी एयरबीएनबीज और जो बन रहे हैं जिसमें हमारी टाइल्स जा रही है, तो उसमें बजट की वजह से भी और हाँ मतलब टाइम भी नहीं होता इन लोगों के पास। जी, next तो वो दिखाइए। काफ़ी टाइल्स को भी आजकल यूज़ करने लग गए अच्छा। काउंटर्स पे, और उस पर तो थोड़ा फैंसी भी हो जाता है। हाँ, हाँ। और इसमें मोल्डिंग नहीं हो सकती तो वो लोग एक लकड़ी की बिडिंग दे देते हैं अच्छा। corners पे। ओके। अच्छी लगती है, हमने काफ़ी इसमें अभी 1-2 रेस्टोरेंट्स के अंदर भी हमने इसको यूज़ किया है। हाँ, कमर्शियल स्पेसेस के लिए Commercial अच्छा spaces पे भी है। सही। चलिए अगला देखते हैं। और डाइनिंग के लिए मुझे लगता है जो कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमी रेंज के आप डाइनिंग सेट्स बनाते हैं, आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। लाइफ में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिखा दीजिए अभी हमको। ऑल राइट, ओके, एक और है हमारे पास, ये वाला लास्ट में है ना। Onyx में। अच्छा, ऑनिक्स में है ये, ठीक है, डन। और ये जो हम देख रहे थे ये ग्रीन में, ये कैसा है? ये भी सर रैंडम टाइल है। अच्छा। बहुत अच्छी टाइल है। ओके। इसके अंदर भी हम इसके साथ जैसे आप अगर कुछ भी वाइट यूज करेंगे, हम इसके साथ वाइट फ्लोर देते हैं। इवन आपकी जो सैनिटरी है वो भी आप वाइट लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास जैसे दोनों आपको ग्लॉस एंड मैट दोनों मिल जाएंगे इसमें। ऑल राइट। ये दोनों अलग अलग बैच में से हैं, सेम बैच के हैं? नहीं, ये अलग अलग बैच है। हाँ। इसकी फिनिशेस दोनों की अलग है, इसलिए वो कलर का थोड़ा आपको कलर वेरिएशन है। ओके, यू कॉल देम एज बैचेस राइट ना? बैच के जैसे आते हैं, बॉक्सेस के हिसाब से आते हैं। बॉक्स आता है, बट बॉक्सेस के बैच होते हैं। ओके, सो एवरी टाइम प्रोडक्शन होगा, हर बार वो नया उसका बैच आएगा। राइट, वील गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। रिदम, बैचेस, एक बॉक्स के अंदर कितने टाइल्स मिलेंगे हमको? सर जो ये वाला पर्टिकुलर साइज है, इसके अंदर एक बॉक्स में 2 टाइल्स आती है। 2 टाइल्स का मिलेगा। ऑल राइट, तो मतलब आपको 2 तो लेने हैं, इतनी तो ज़रूरत रहती है। मिनिमम क्वांटिटी। राइट, चलिए वील गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, आवर नेक्स्ट सेक्शन। यस सर। ओके, 20 mm। 20 mm टाइल्स जैसा हमारे पास थोड़ी डिफरेंट साइज में 2x3। ओके इसके अंदर भी काफ़ी हमारे पास शेड्स मिल जाएंगे। जी, बेसिकली ये टाइल आपको एलिवेशन पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ पे काफ़ी हैवी फुटफॉल एरिया होता है ठीक है। उस पर आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बेसिकली इस पर ट्रक भी चल सकता है, इस पर कोई इशू नहीं है। अच्छा, राइट। ओके। और इसकी आप फिनिश अगर सर पास से देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर स्टोन फिनिश आपको इसमें मिलेगी। मतलब अगर इसको हम लगाएंगे तो कोई बोल नहीं सकता कि एक टाइल है। और आप देखिए इसकी थिकनेस भी इसकी बहुत अच्छा। अच्छी खासी थिकनेस है। दिस इज 20 mm दिस इज 20 mm। and this is a little rough finish. दिस इज Okay. बेसिकली कॉल्ड R11 फिनिश, R11 मैट फिनिश, जो सबसे ज़्यादा मैट फिनिश में आती है। इससे ज़्यादा मैट कुछ भी नहीं आ सकता। Okay. सो बेसिकली बिल्कुल एंटी स्किड जैसे बोलते हैं वो है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। अच्छा, बेसिकली जहाँ पे स्नोफॉल एरियाज होते हैं, या फिर काफ़ी मतलब जहाँ पे स्लिप होने की प्रॉब्लम Slippery surface होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्नोफॉल से क्योंकि एक लेयर ऑफ स्नो बन जाती स्नो है। बन जाती है, तो उससे पे भी अगर आप इसको 30 डिग्री पे भी अगर इसको लगा देते हैं तो भी इस पे स्लिप नहीं होगा कोई। अच्छा, स्नो आने के बाद स्नो भी? आने के बाद भी। ठीक है। और इसके कलर्स हमारे पास कौन कौन से इसमें अवेलेबल मतलब है? बेज, वाइट, ब्लैक, अच्छा। काफ़ी अलग अलग ब्राउन। This is same? हाँ, मतलब ऑल दीज आर R11 surfaces. R11 is a baking process, ना? It's a baking process. Okay. Right, yes. All right. So R11 is the highest baking process. Highest baking process. And For you mat. said that this can bear the load of a truck as Truck well. also, right, sir. Okay. So this is perfectly suitable for car parking as well. Car parking, so obviously. Okay. But you think they will not collect a lot of dust because No, being I don't think इसमें इतनी आपको easy to maintain easy and to washable clean है? है। Okay. Yes. And जो elevated areas हैं उनमें आपने बताया वर्टिकल एलिवेशन जो है हाँ, उसमें भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा थिकनेस की वजह से स्पेस ले लेगा आपका। बट उससे कोई आई डोंट थिंक कि एलिवेशन के अंदर उससे Elevation कोई में आपको नहीं फर्क पड़ता। आएगा। हाँ, ठीक है, डन। ये क्या प्राइस रेंज में, फिर इसके ये कलर्स अराउंड देखेंगे? सर 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसके अंदर जैसे हमारे पास एक छोटा साइज आता है 2x2। अच्छा। उसके जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे 2 ही सैंपल हैं। तो 2x2 के अंदर भी हमारे पास अभी इसमें एक स्पेशल ऑफर आया हुआ है। जी, मैंने आपको बताया था जैसे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर यूज़ होती है। ठीक है। सो अभी इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का लॉट था जो फैक्ट्री में पड़ा था, तो हमने वो पूरा लॉट ले लिया। सो अच्छा। इसकी एक स्पेशल अभी हमने प्राइस निकाल रखी है, दैट इज़ ओनली 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। Yes. अदरवाइज दिस गोज 100 रुपीज़ 150 150 रुपीज़ पर इट स्क्वायर फीट। स्टार्ट्स फ्रॉम 150। ओके, डन। अभी- इसमें भी हमारे पास रेंज अलग अलग है। यस, इसमें मतलब 2 साइज आते हैं, 1 is 2x2 एंड 1 is 2x3। ओके, Yes. नहीं स्टार्ट्स इस रेंज से होता है, देन इट गोज टू It starts from 150 to I think around 250 rupees per square feet. ओके, Yes. ठीक है। सेक्शन 3, ओके, बताइए प्लीज़। ये सर हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, जिसमें आपको बेस और हाइलाइटर दोनों सेम कलर के अंदर मिल जाता है। ठीक सो है। बेसिकली हमें वॉशरूम में दिक्कत आती है कि अगर हम एक टाइल पसंद कर रहे हैं, उसका हाइलाइटर जो है हमें उसका कलर काफ़ी हद तक मैच करना पड़ता है, या फिर हम कॉन्ट्रास्ट में जाते हैं। जी, और जो हमारे मॉर्कन्स नॉर्मली आते हैं वो बहुत छोटे साइजेस में आते हैं।
तो इसमें सर हमारे पास कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें आपको सेम कलर का बेस भी मिल जाता है और इसी कलर का आपको हाइलाइटर भी मिल जाता है। ओके तो जैसे हम ये वाला देखेंगे, अगर इसमें ये पिस्ता कलर है, इसके अंदर आपको इसका मैट फिनिश में प्लेन कलर मिल जाएगा और उसी कलर में आपको इसका हाइलाइटर भी मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर भी एक स्पेशल एक ग्लू इफेक्ट है जो कि इसमें पूरा आपको हो सकता है, आई थिंक फ़ोन में नहीं है, बट वो पूरा शाइन इफेक्ट एक अलग से आएगा जी। सो बेसिकली अगर जैसे इसके वॉशरूम्स बहुत अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि आप पूरा एक जब सिमिलैरिटी आती है वॉशरूम में तो वॉशरूम और भी अच्छा लगता है। Exactly. और क्योंकि ये मैट है तो आप इसको या फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, 3 वॉल्स इसकी बना सकते हैं और उसके साथ आप हाईलाइट करना चाहें तो ये हाईलाइटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसका यूजेस बता दिया, इसकी थिकनेस बता दी, साइज भी बता दिया इसका। नहीं, इसका साइज 2x4 है, 2x4 I think है। मैंने बताया नहीं था। ठीक है, डन। इसमें से कुछ टाइल्स का हमेशा हम इस बात को कहते हैं, कई सारे टाइल्स हैं जो आप क्रिएटिविटी दिखाते हैं, राइट। वो आपके अपने यूजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इसको डेड हाउस पे या फिर यहाँ वहाँ यूज़ करना है तो इनफैक्ट अगर जैसे पिस्ता कलर है, अगर सिर्फ इसी टाइल को आपको यूज़ करना है तो आप इसको फ्लोर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर पे भी जैसे use कर नॉर्मल हमारी जो फ्लोरिंग्स होती हैं उस पर भी मैट आजकल कलर्स काफ़ी चलते हैं। ऑल राइट, डन। इसमें जैसे आपको एक ये ब्लू कलर भी काफ़ी हमारा इन है, ये भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। सो इसमें ये इसका हाइलाइटर हो जाएगा और इसी टाइल में आपको सेम ब्लू कलर की इसका बेस भी मिल जाएगा। ओके, वो लोग जो कि खुद से अपने बाथरूम प्लान करते हैं, अपने बाथरूम डिज़ाइन करते हैं, उनको बता दें कि मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे कि आप अपने 4 वॉल्स होते हैं बाथरूम के, उनमें से एक कोई भी एक वॉल है जो अभी आपने रिदम ने बताया था कि शावर पैनल का एरिया या फिर लेफ्ट राइट का एरिया, आप उसको एक चूज़ कर लें, प्रेफरेबली स्मॉल साइज वॉल, उस पे आप इसको लगा दें। बाकी के 3 वॉल पे और फ्लोर पे आप इसको लगा सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ कर सकते हैं, डन। अगर आपको लगता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बेस टाइल दूसरे भी ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे बहुत ऑप्शंस है। ये तो एक मतलब एक एड ऑन एडवांटेज है जो कि हमें मिल रहा है कि यू आर गेटिंग द सेम कलर इन बोथ हाइलाइटर एंड एग्जैक्टली बेस टाइल। ऑल राइट, दिस इज वन, दैट्स हाउ यू कैन डिजाइन योर वॉशरूम। हम लोगों ने बता दिया है इनके रिलेटेड एक्सेसरी से रिलेटेड मैटर भी कि आप उनको कैसे लगा सकते हैं। क्रिएटिव इनपुट और ले लेते हैं एक दो रिदम से क्विकली। क्या हम इनको फ्लोर से लेके ऊपर सीलिंग तक यूज कर सकते हैं? सर ये आपने बहुत अच्छा बताया, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इन है। जैसे हम लोग नॉर्मली भी ये करते हैं, हम लोग शावर वॉल से लेके उसका जो फ्लोर है वो भी कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा। तो कुछ जो एल बनता है वो बहुत अच्छा बन के आता है। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे और बता दें कि जैसे अगर शावर की वॉल है तो सिर्फ जो शावर एरिया है हम लोग शावर की जो फ्लोर है वो भी सेम दे देते हैं। सो उससे भी एक यूनिफॉर्मिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। ओके, और इसकी हाइट आप सीलिंग तक ले जा सकते हैं, वहाँ से हम लेके लोग नीचे हमेशा सीलिंग हाइट तक ही प्रेफर रिकमेंड करते हैं। और फिर ये पैटर्न ऊपर से लेके नीचे तक आता है, बिल्कुल, है ना? हमने प्रॉमिस किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आज हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत बहुत वैल्यूएबल होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने क्लियर कर दिया कि ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से यही टाइल अगर आपको हाइलाइटर लग रहा है तो आप इसको एज ए हाइलाइटर इसको यूज़ कर लीजिए अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न चाहिए। ठीक है, डन। सो दीज आर द हाइलाइटर्स यू कैन यूज़ इन योर वॉशरूम, दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। प्राइस क्या बताया आपने? अराउंड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट के आसपास है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखते हैं हम। कलर्स के बारे में एक क्रिएटिव इनपुट और है जो हम रिदम से ले लेंगे कि स्पेस के हिसाब से, एक तो आपके जो स्पेस होते हैं उनके हिसाब से आप कलर चूज़ करते हैं। तो ये जो कलर्स हैं ये थोड़े कॉम्पैक्ट स्पेसेस में अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मैं आपको उधर ही सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आपका थोड़ा वॉशरूम बड़ा हो। अच्छा, क्योंकि डार्क कलर है, अगर हमने इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आई डोंट थिंक कि वो वॉशरूम इतना अच्छा बन के आएगा। ठीक है। बट अगर आपका वॉशरूम बड़ा है या फिर एक नॉर्मल साइज़ का है अच्छा खासा तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है। और ये अनइवन डिलिबरेटली होते हैं, इनको डिस्ट्रेस फिनिश दिया गया है, जो देख रहे हैं डिफाइंड लाइन नहीं है प्रॉपर, ना हाईडी एचडी, यही इसकी खूबसूरती है। हाँ, जो इसका रॉनेस है, राइट, है ना? ये एक मिनट टच करके, ओह ओके, सरफेस स्मूथ है, सरफेस बिल्कुल प्लेन है। ओके, बट वो आपको जो लुक है वो बिल्कुल रॉ देगा। आजकल आर्किटेक्ट्स भी काफ़ी बोलते हैं हमें रॉ लुक देना है जैसे साइट हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल राइट, ठीक है, डन। उसी को मैच करता हुआ, क्योंकि इसमें रॉनेस है इसीलिए इसके जो बेस स्टाइल है उसमें रॉनेस है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब हमारे पास एक और मॉकअप रेडी है यहाँ पे। ये दिस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। यस, ओके, बताइए इसके बारे में। ये भी सर एक जो मॉर्कन प्रिंट हम बोलते हैं वही है। सेम ये इसका हाइलाइटर है और ये इसका बेस स्टाइल है। इसके अंदर भी आप सेम कर सकते हैं, एक वॉल एज एन हाइलाइटर, फिर इसको आप बेस में लगा सकते हैं। ओके, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है ये भी, काफ़ी अच्छी लगेगी। बट अगेन ये थोड़ा डार्क कलर है तो मैं भी इसको भी उधर ही सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आपका हैवी फुटफॉल, सॉरी, जहाँ पे आपका वॉशरूम अगर छोटा है तो आप इसको यूज़ नहीं करिए। ओके, और अगर वॉशरूम छोटा है और आपके पास लाइट का सोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोज हाइपोथेटिकली यू हैव विंडोज, तो आप यूज़ कर सकते हैं ना? ठीक है, डन। विल कंटिन्यू द सेम सीरीज। ओके, आपने क्या कहा? ये दिस इज द सेफेस्ट कलर।
हाँ मतलब सर मेरे ख्याल से अगर जैसे किसी को अगर बिल्कुल सेफ प्ले करना है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं जाना और Okay. एक लाइट कलर भी है तो ऐसे कुछ कलर्स हम लोग जैसे क्लाइंट्स को बोल देते हैं कि इसमें आप सेफ हो, आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या लगा लिया Okay. डार्क कलर या फिर कुछ ऐसा. It may sound little in terms of medical science. We are not talking in terms of we're not talking here. This is not a medical conclave Right. we are holding here. But have you seen people being little more apprehensive, little suspectful, and not very receptive about things? उनको लगता है कि मतलब हमने ये कलर चूज कर ली, क्या होगा रिजल्ट? There's a constant sense of fear that floats in people's mind. Have you Sir, seen this? उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि क्लाइंट को ऑलमोस्ट पसंद आ चुका है देन वी हैव अ सॉफ्टवेयर सो फॉर लाइक विजुअलाइजिंग द टाइल्स इन योर वॉशरूम और ऑन योर फ्लोर. सो हम वो टाइल आपको एक वॉशरूम में बना के दिखा देते हैं कि इसका लुक ऐसा आएगा आपके टाइल्स लगने के बाद. अच्छा, ऐसा सॉफ्टवेयर से आप बना के सो इट दिखा ओनली देते हैं। टेक्स अस 5 मिनट्स. अगर कोई क्लाइंट है तो हम उसको दिखा देते हैं और काफ़ी हमारी टाइल्स में बारकोड्स भी हैं. सो आप Okay. उसको स्कैन करके बहुत इजीली देख सकते हो कि आपका वॉशरूम कैसा लगेगा. ठीक है. Yes. कितने परसेंट हिंदुस्तानी आपको लगता है जब टाइल्स खरीदने के लिए आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं? राइट कितने परसेंट? सर आई थिंक 80% से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते Confused हैं. रहते हैं. बट जिनके पास अगर अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं तो वो काफ़ी अच्छा हमको गाइड कर देते हैं. Okay, Yes, sir. ठीक है. All right, very diplomatically you answered the question. Okay, but my job is to extract the information. So going back to the most earthy and beige color. Right. This color is the safest color. Safe. If you don't want to experiment, if you want to play safe, as Rhythm said, that 8 out of 10 people will love this color, right? Right. ठीक है. So take this one. This one is a beige Yes, color. this is one is beige. और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम ये कंसेप्ट्स हमारे पास हैं लाइट मतलब हाईलाइट एंड बेस. इसमें Okay. आई थिंक अराउंड हमारे पास 15 to 20 कंसेप्ट्स और हैं. अच्छा. तो आज मैं आपका इतना टाइम नहीं लूंगा. नहीं, क्योंकि ठीक है, हमें no problem. इसको हम We- पूरा कवर नहीं कर पाएंगे. बट अच्छा. अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि उन्हें यही सीरीज के बारे में देखना है तो हम उसका ब्रोशर उनको शेयर कर सकते हैं. Okay. उसके अंदर सारे आपके जितने भी डिजाइन एंड कंसेप्ट्स के वो आ जाएंगे. Okay. बस एक quickly. Yes. All colors are available, right from pastel earthy color to strong Right, colors. right, Strong right. colors भी हैं हमारे पास. बिल्कुल इसमें. स्ट्रॉन्ग कलर्स भी हैं. चलिए ठीक है. Now the last section, Yes. very important section. वो start करते हैं. Last section. Yes. Okay. I mean, it shouldn't be the last one though. But Yes. however, we have to wind up. Before we wrap up, there's Yes. something important coming. Quickly, we'll show to our viewers. There are some subway tiles. Yes. Those are hexagon tiles. Hexagon में भी we have around I think 20 to 30 options. Okay. मतलब आई डोंट नो मेरे पास तो इतना कुछ है दिखाने को बट आई थिंक You can go on for hours together. Okay. So These are the subway tiles. Easily can be used on Dado on the kitchen. Dado tile. washroom highlighters you can All use right. them anywhere. So little And good kids room pastel also. colors. Yes. Okay. Great. And- Now my favorite part. So these are some of our like different highlighters which we call them Lux series. Lux. Lux, but it's Okay. only a name given by us. All right. Nothing to So- do with Unilever. No. Okay. So so basically Alright. you'll get aqua blue, white, copper, beige, Okay. brown, something different. So Okay. basically इसकी अच्छी बात ये है कि इसका जो टेक्सचर है वो पूरा मैट नहीं है. So even if you want to use them on the dado wall of kitchen, Okay. आप यूज कर सकते हो. बहुत easy to clean रहेगा ये भी. Okay. Yes. इसका thickness कितना है? इसका थिकनेस है 8 mm. Okay. बट आप इसको सिर्फ वॉल के ऊपर यूज कर सकते हैं. मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी कि आप इसको फ्लोर पे लगाएं. फ्लोर पे तो बिकॉज ये एम्बॉस्ड है. ये एम्बॉस्ड है, वैसे भी नहीं लग सकते और इसकी थिकनेस भी कम है. ठीक है. सो इसको आप वॉल पे ही लगाएंगे तो बहुत अच्छा हाईलाइटर्स है. इन सब के साथ हम लोग बेस टाइल्स भी काफ़ी मिक्स एंड मैच करके देते हैं. ओके. एक मिनट रिदम, आपने बोला डेडोज यानी किचन के कुकिंग प्लेटफॉर्म के सामने. हाँ या बिल्कुल. फिर आपने बताया कि इनको आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं एज हाइलाइटर वॉल. आप इनको बाथरूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और किचन काउंटर के ऊपर जो टाइल लगती है 2 फीट पे हाँ. आप इनको उस पर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो ये काफ़ी इजी टू क्लीन भी है. तो Alright. इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. छोटे ये टेराजो जो टाइल थी वो है. ये अभी काफ़ी है तो इसमें तो हमारे पास बहुत अराउंड 25 to 30 ऑप्शन. ठीक है. क्विकली दो चीज़ें हम यहाँ जी. पे इस बारे में बता दें कि ये टाइल्स को फर्नीचर में भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. इनको बिल्कुल आप कैबिनेटरीज के प्लैंक्स पे भी यूज़ करते हैं इनको. हाँ. इसको आप टीवी के पीछे वॉल Cabinet, हाइलाइट्स बिल्कुल. कैबिनेट बनाते हैं. आप वहाँ इसको कर बेड सकते हैं. बैग पे यूज़ कर सकते हैं. अच्छा. हाँ आप इसको डैडो पे यूज़ कर सकते हैं. टीवी कैबिनेट पे जो पीछे लगती है उस पे यूज़ कर सकते हैं. हाँ, ये बहुत अच्छा काफ़ी इम्पैक्ट अच्छी क्रिएट यूज़ करते है. हैं. इवन एलिवेशन पे अगर आपको पूरा एलिवेशन तो मैं नहीं बोलूँगा बट एलिवेशन पे भी आपको कहीं हाईलाइट करना हो थोड़ा पार्ट आप उसको ठीक है. यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनको एक बहुत अच्छा क्रिएटिव है माइंड में आइडिया. आपके पास अगर कोई होटल है और आपको एक फीचर वॉल बनाना है आपके Right. रिसेप्शन के जस्ट पीछे, जी. तो भी आप इनको इस्तेमाल बिल्कुल कर आप सकते उधर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. किचन में ये बहुत अच्छा एक विक्टोरियन एज का एक थीम हाँ, क्रिएट थोड़ा करने में हेल्प यूरोपियन भी करते हैं, आपको है ना. यूरोपियन थीम देते हैं आपको ये.
और इनको जब आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने वाइट कलर लिया है, बेज लिया है, Right. गोल्डन लिया है, तो इनकी कैबिनेटरीज आप रियल वुड में बनवाएं, बहुत अच्छी लगी। स्ट्रॉन्ग कलर से बनाएं। Strong. हाइपोथेटिकली अगर आपने वाइट कलर का लिया हुआ है तो ब्लू, बेज Right. लिया हुआ है तो ग्रीन, Green. है ना, इनके Teal. साथ आप टील ब्लू, यस वो टील अच्छा। भी बहुत अच्छा लगेगा। स्टील कलर, ब्लू कलर की कैबिनेटरीज बनवाएं तो अच्छा दिखेगा। बिल्कुल। हो क्या रहा है ना, बेसिकली ये आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं अभी, हाई ग्लॉस लैक और ग्लासेस और वो सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वुड से थोड़ा दूर हो जाते हैं, पॉलिश में थोड़ा टाइम बट लगता है, वो तो- एवरग्रीन है सर वुड, तो हाँ, वो मतलब दैट नेवर गोज आउट ऑफ Right. फैशन, है ना। राइट इनफैक्ट नेचुरल टीक वुड, नेचुरल पॉलिश के साथ में विद वाइट कलर दीज काइंड ऑफ टाइल्स, बहुत अच्छा लगेगा। दे विल लुक वेरी बहुत गुड। अच्छा। चलिए, ये क्या प्राइस रेंज में आते हैं? ये अराउंड 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हमारे स्टार्टिंग है। Okay. इसमें तो ये 5 कलर्स हैं तो सबकी ही रेट सेम 100 रुपीज़ है। All right. Yes. ठीक है, चलें, time to wrap up now. I hope Yes, sir. after this video you will not keep me as ransom because I have extracted too much of knowledge from you. यस सर। Okay, I इसके have- बाद भी सर हमारे पास काफ़ी रेंज है, जैसे 2x4 काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट हमारा है, उसमें अराउंड 200 डिज़ाइन है, बट वो आज मैंने दिखाया नहीं क्योंकि है। हमारे पास फिर टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। Done. बाकी एवरी साइज वी हैव, जितने भी टाइप में साइज आते हैं 1x1, 8x8, 2x4, 2x2, सब साइजेस हम रखते हैं। 6x4, 8x4, सारे टाइल्स, सब हमारे पास सारे tiles साइज, मिलते सारे हैं, स्पेस के लिए डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे आपने अराउंड 35 ब्रांड जैसे मेरे पास इस टाइम में यहाँ राइट, और सारे के सारे टाइल्स हैंड पिक्ड होते हैं। Hand बस picked ऑर्डर हैं। प्लेस करने में थोड़ी सी वायबिलिटी इशू आती है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, देयर समबडी वाज कॉलिंग फ्रॉम असम एंड दे वर आस्किंग Yes, फॉर 2 for two टाइल्स। tiles. Commercially it becomes little It's not viable non-viable, actually, yes. right, feasible नहीं होता है वो, right, ठीक है। I think we have taken enough of your time. Please allow us next time to come inside. थैंक यू सो मच सर। इतना टाइम ले लिया कि ऐसा ना हो अब अगली बार मुझे अंदर ही ना आने। अरे सर, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। Thank you very Thank you, much. sir. Pleasure talking Thank to you you, once again. Take care.